guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to Saigon, a city in Vietnam that hits you with its energy the moment you arrive. A city where 9 million people and 8 million motorbikes move in perfect chaos. A city where French colonial buildings stand beside the glass skyscrapers. A city where coffee is not just a drink, it's a lifestyle. Saigon is bold, energetic, chaotic, and at the same time extremely welcoming. Welcome to the heartbeat of Vietnam, Saigon or Ho Chi Minh. So let's start exploring Saigon. I will be covering all the places to visit here. We will explore the nightlife of Ho Chi Minh, and I'm very sure by the end of this vlog you will feel like coming to Ho Chi Minh City in Vietnam. So Saigon and Ho Chi Minh are the same city. Before 1975, Ho Chi Minh used to be Saigon. Locals आज भी इसे Saigon ही बुलाते हैं. 1975 के वॉर के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने Saigon का नाम Ho Chi Minh City कर दिया to honor the revolutionary leader Ho Chi Minh, and that's how Saigon became Ho Chi Minh. तो आप confused मत होना. Saigon and Ho Chi Minh are the same. Saigon is the cultural name and Ho Chi Minh is the official name. So this is Saigon Post Office, one of the oldest and most famous places in Ho Chi Minh City. So this post office was designed by the same architect who designed Eiffel Tower. This post office was built between 1865 to 1891 और तब से लेके आज तक ये post office functional है. किसी को भी back home if you want to send a letter or something, you can write a letter and post it here. अभी चलते हैं अंदर and let's take a tour of this post office. मेरा मन कर रहा है मैं खुद को ही एक लेटर लिख लूँ यहाँ पे. So you can see a lot of people are writing postcards here. मतलब मेरा मन तो कर रहा है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं नहीं लिख रही. 30,000 डोंग है चार्जेस. आप यहाँ पे कहीं से पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हो. बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे एंड देन यू कैन सेंड इट. डोमेस्टिक इंटरनेशनल हर जगह 30,000 डोंग प्राइस उन्होंने बताया है मुझे. बाकी उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या है वो मुझे नहीं पता. आप आओगे तो यहाँ पे चेक कर लेना. तो वो डिटेल मुझे कोई यहाँ पे दे नहीं रहा है. तो यू कैन सी द सिचुएशन, काफ़ी क्राउडेड है ये जगह. तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ. So from here only you can see Notre Dame Church. लेकिन ये चर्च अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंदर जा नहीं सकती और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई तो मुझे अब कैमरा यहाँ पैक करना पड़ेगा. So just next to the post office is this book street in Ho Chi Minh City. और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है लाइक इतनी ज़्यादा शांत जगह है. मतलब हो chi minh सिटी इज़ नॉट क्वाइट एट ऑल. बहुत ज़्यादा क्योटिक है, बहुत शोर है इस सिटी में. बट जैसे ही आप इस स्ट्रीट के अंदर आओगे ना, एवरीथिंग फील सो काम. कोई नॉइज़ नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई हॉन्किंग नहीं है, कोई मोटर बाइक नहीं है. एंड हियर यू हैव सो मैनी बुक स्टोर्स. सो इफ़ यू लव बुक्स and if you have time, want to enjoy your coffee along with the books, then this is your place in Ho Chi Minh. That side is the church, वहाँ से मैं आई हूँ. And then you see पूरी street पे यहाँ पे books. Actually अभी थोड़ी सी बारिश हो गई है तो इन लोगों ने book cover कर दी है. But you have nice postcards, books. Here is a cafe and then people sitting and getting their portrait made.
हो ची मिन में अगर आपको फ्रिज मैग्नेट लेना है ना तो यहाँ पे बुक स्ट्रीट पे ले सकते हो। काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं, थोड़े से महंगे हैं बाहर से, बट क्यूट डिज़ाइंस एंड यूनिक वंस। आई लव्ड दिस वन। दिस इज़ गॉट वियतनाम का फ्लैग एंड एवरीथिंग। 55,000 डोंग, मतलब 185 रुपीज़ इंडिया का। दिस इज़ गोइंग होम विथ मी। Here I want to say, Vietnam, you win. What is this beautiful cafe, man? Vietnam make cafe और coffee का culture ना, I don't think so you can compare it with any part of the world. अभी I have come to a cafe. This is called Oasis Cafe. And what is so beautiful and unique about this place is that you get to sit on a floating chair. यहाँ पॉन्ड जैसा एक सेटअप है, तो फिश के साथ, फिश से सराउंडेड आप कॉफ़ी पी सकते हो। और ये जगह इतनी ज़्यादा मतलब वेटिंग लिस्ट में रहती है ना। दिस इज़ माई वेटिंग लिस्ट, 7वां नंबर है मेरा। मुझे लगता है आधा घंटा से भी ऊपर मुझे वेट करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा मुझे, 15 मिनट में मेरे को अपना नंबर मिल गया। ऑल्दो 7 वेटिंग थी प्रोबेबली, क्योंकि अभी शाम हुई ही है, अभी 4 बज रहे हैं। इट इज़ मैन मेड प्लेस, बट इतना खूबसूरत है ना, लाइक वाइब इतनी अच्छी है, म्यूज़िक इतना सूदिंग है, कामिंग है। दिस इज़ डिफरेंट वाइब देन व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड इन हनोई। दोज हु से हो ची मिन हैज़ नथिंग, कम हियर, यू विल लव इट। Okay, so I've ordered this avocado coconut smoothie. Another good thing about this cafe is, although it looks very posh and all, it's not at all expensive. This smoothie is for 59,000 dong. मतलब इंडियन करेंसी में more or less 200 रुपीज़ का होगा, which is decent I believe. Cheers, and it's very tasty. Come to this cafe when you come to Ho Chi Minh. You won't regret, I promise. What I have observed, Hanoi is still more cultural and Ho Chi Minh, it's more of a city vibe. वैसे भी हो ची मिन वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है, Hanoi is the second largest city, but yeah, too much of city vibe and good vibe actually. चारों तरफ इतनी लाइटिंग है, क्रेजी सिचुएशन है यहाँ पे गाड़ियों का। मतलब हनोई में मुझे लगता था कि रोड क्रॉस करना मुश्किल है, बट यहाँ तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वहाँ फिर भी गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाते थे वो, यहाँ तो एकदम रश में चलते हैं और रुकते भी नहीं है। लाइक एवरी क्रॉसिंग, एवरी सिग्नल इज़ लाइक जान हथेली पे रख के आप क्रॉस कर रहे हो। Madness begins. Today is Friday night and I have come to Bui Vian Walking Street. This place reminds me of Khao San Road of Bangkok. I don't know अंदर शोर कितना है, but let's walk it. I'm happy कि Friday को मैं यहाँ पहुँची हूँ। चलो वाइब एंजॉय करते हैं।
So I have come to a temple in Ho Chi Minh and I wanted to visit a temple for a very long time क्योंकि 15 से 16 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए और अभी तक ना मैं कोई होली प्लेस में नहीं गई थी. तो I was missing, you know, to feel that energy, that calmness. So I have come to this temple. It's called Zed Emperor Pagoda. Zed Emperor Pagoda. It is one of the oldest and also very devoted and a popular temple in Ho Chi Minh. This was made in 1906 and even President Barack Obama visited it in 2016. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है. I wanted to come here. I'm not very sure कि कैमरा अंदर अलाउड होगा कि नहीं क्योंकि it's a holy place, but let's get inside and check it. Okay, so inside the temple the camera was not allowed. मैं वैसे भी ये वाली जगह जो है ना वो कैमरे के लिए नहीं आई थी. I came here because I genuinely wanted to feel this spiritual aura. वैसे तो कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा पाऊँगी अंदर मैंने क्या देखा क्या एक्सपीरियंस करा. बट आई विल टेल यू, किसी भी टेम्पल में मतलब किसी भी रिलीजन के टेम्पल में होली प्लेस में आप जाओगे ना, यू विल सी लोग अटमोस्ट श्रद्धा से प्रेयर कर रहे होते हैं भगवान के सामने बिल्कुल झुक के. एंड वही ऑफरिंग पूजा के लिए फ्रूट्स फ्लावर्स एंड ऑल सेम थिंग. बट जैसे ही मैं अंदर गई ना, इतना अच्छा सा सुकून वाली वाइब आई फेल्ट, लाइक वेरी गुड एनर्जी. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल. आर्किटेक्चर इसका कैसा बताऊँ, जैसे नेपाल के जो वो वुडन वाले आर्किटेक्चर नहीं होते हैं वो है. इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इन हो chi minh if you want to just calm down and take a break from all the cafe hopping, bar hopping, party etc. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके. अच्छा, हो chi minh में देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. 12 तो कुछ हैं ही, उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही टूरिस्ट को वो वाइब मिलेगी. तो अगर आप हो chi minh आ रहे हो तो बेस्ट इज़ यू स्टे इन डिस्ट्रिक्ट 1 क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्टी वाइब है. मैं भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रही हूँ. दिस प्लेस इज़ इन डिस्ट्रिक्ट 3. तो यहाँ पे थोड़ा एलिगेंट, थोड़ा काम, लाइक हाई राइज बिल्डिंग वाली वाइब आपको मिलेगी. इफ़ यू वांट टू टेक एन एयरबीएनबी एंड ऑल. यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं बट लेस टूरिस्ट. दोज टूरिस्ट हु प्रेफर कामनेस ओवर टूरिस्टी स्टफ, तो वैसे वाले टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्टी वाला सीन चाहिए एंड you want to experience the vibe of Ho Chi Minh, then you stay in District 1. So I'm walking in District 3 only, but ये काफ़ी लोकल सी जगह है. जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 में जहाँ मैं रह रही हूँ ना, देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस एंड वेरी फास्ट एक्टिव एनर्जी. यहाँ पे इट्स काम डाउन, लाइक लोग अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं. लोकल मार्केट, लाइक एक्सट्रीम लोकल वाली जो मार्केट्स होती हैं वैसी चीज़ें हैं. ऐसी छोटी छोटी दुकानें. हियर आई कैन सी लोकल मार्केट टाइप सी जगह. एक बहुत बड़ा चैलेंज है वियतनाम में क्योंकि यहाँ पे स्कूटी वाली जो ट्रैफिक है ना वो रुकती ही नहीं है. तो रोड क्रॉस करना व्लॉगिंग करते करते इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की. तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है चलते चलते भी. दिस इज़ द ट्रैफिक सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट. इट जस्ट डजंट स्टॉप. यहाँ पे हनोई से भी ज़्यादा स्कूटर्स हैं, मतलब 9 मिलियन से भी ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं इस सिटी में. इट्स लाइक क्रेजी. मतलब लग रहा है जैसे मेज के जिगजैग चारों तरफ जहाँ देख लो वहाँ स्कूटी चले जा रहे हैं. लुक एट दिस. हाउ डू आई क्रॉस? इट डजंट स्टॉप. मैं जेन्युइनली पिछले 10 मिनट से यहाँ पे खड़ी हूँ. गाड़ियाँ यहाँ रुक ही रही हैं. मतलब किसी को अगर रोड क्रॉस करना हो तो कैसे करेगा? एंड जबकि आई एम स्टैंडिंग एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यू सी.
Okay, so here you see a church behind me. This is one of the most Instagrammable places in the world. And not to mention, वियतनाम में तो है ही है. इसका कलर पिंक इसलिए है क्योंकि इसको रिस्टोर किया गया था और उसके बाद इसको पिंक कलर में पेंट किया गया just to represent the joy, youth and happiness of Vietnam. So this church was made in 1876 during the French colonial period and काफ़ी पॉपुलर जगह है. The only thing is आज सैटरडे है और ये चर्च आज बंद है. अब ये मंडे को खुलेगा और मंडे को मैं ऑलरेडी इंडिया में होंगी, तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखा दूँ. लोकल इस चर्च को प्यार से कॉटन कैंडी चर्च भी बोलते हैं. दिस इज़ इन डिस्ट्रिक्ट 3 एंड इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट चर्च इन साइगॉन, हो ची मिन. अभी यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी हु हैव कम हियर, बट ये बंद है तो बाहर से ही फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं. सुंदर तो है, इनफैक्ट इट लुक्स लाइक वो जो डिज़नीलैंड में मैंने डिज़नी वाली जो मेन बिल्डिंग देखी थी ना, वैसा कुछ लग रहा है मुझे. ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड विजिट इट फॉर द वैनिटी ऑफ इट whenever you come to Ho Chi Minh. And it is a very nice spot to click pictures. अब मैं अकेले हूँ तो मेरे में पेशेंस नहीं है वहाँ पे किसी से पूछने का कि मेरी फ़ोटो खींच दो या फिर ट्राईपॉड माउंट करने का. When I went to Hanoi, you know, and when I learned that Hanoi is the second biggest city, usually capital city बड़ी होती है ना, तो मुझे लगा यार यहाँ पे तो सीन क्रेज़ी है. बट हो ची मिन्ह आने के बाद लगा कि हनोई वॉज वेरी क्वाइट. यहाँ पे अलग ही सिचुएशन में चीज़ें चल रही हैं. So now I have reached the famous cafe apartment here in Ho Chi Minh. वैसे आपको एक क्विक फैक्ट दे दूँ, हो ची मिन्ह सिटी हैज़ ओवर 4,000 cafes and this 9-story building has almost 42 cafes. यहाँ पे हम अंदर चलते हैं and we will sit in one of these cafes. काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी मैंने इस कैफ़े की, तो मुझे लगा एक बार चल के देखूँ तो क्या वाइब है. and this is the area. एक्चुअली शाम हो गई है तो लाइटिंग काफ़ी प्यारी है एंड देन पीपल चारों तरफ दे ऑल आर वॉकिंग. यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग, सो यू कैन वॉक हियर, एन्जॉय द वाइब. फ़िलहाल हम चलते हैं ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए. इस बिल्डिंग में आप लिफ्ट तो ले सकते हो लेकिन ये लिफ्ट फ्री नहीं है. मतलब लाइफ में पहली बार मुझे लग रहा है मैं किसी अपार्टमेंट में कैफ़े में जाने के लिए लिफ्ट के लिए दे रही हूँ टिकट के पैसे. 3,000 डोंग है, बट इट्स अ कमर्शियल प्लेस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. वैसे मैं किसी भी फ्लोर पे जा सकती थी, बट आई केम ऑन द टॉप फ्लोर जस्ट टू एन्जॉय द व्यू फ्रॉम द टॉप. यहाँ बैठते हैं. ओह माय गॉड, आई एम ऑन द 9th story. व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से. I came on the top floor only to enjoy the view, which is beautiful, and I ordered a bubble tea this time. Came for the vibe.